His English was as horrible. Coming from a very small village, a person is going to become an officer in the Indian Army. मैं जब यहाँ आया था तो अगर मुझे एक वंस यू शो द पिक्चर ऑफ टैट ना, अगर मुझे आधा घंटा भी बिता दोगे तो भी मुझे स्टोरी नहीं आती थी उसके ऊपर। तो मैं जहाँ से सर जैसे गया हूँ, मेरा एक बुकलेट इतना सारा भरा हुआ है, अराउंड 400 स्टोरी मैंने लिखी। And it's a very good case where many of you say, my English is not good. His English was as horrible. But today, I would like request Netaji to convey to you what he did to overcome his shortcomings and how did he succeed. Ultimately, nothing succeeds like success. Here and onward, nobody is going to ask him in which attempt you got through. But look at his resilience, that he kept on working. He had come to us after his third attempt. When he did from here, he got conferenced out, picked up that courage that I have reached so far, and now recommendation is very close. He worked extremely hard after that. And now I request Netaji to convey to you personally his experiences here. How did he utilize his time in between? What did he do in the SSB? And was it relevant or not relevant? And his advices, because he is also fairly senior, and I'm sure he will advise you the best. Over to Netaji. But before that, give him a huge hand. This is an example of grit and perseverance. Coming from a very small village, a person is going to become an officer in the Indian Army. It's no mean growth. And this is what is India. And this is what your damn responsibility is, that you work extraordinarily hard. Over to Netaji. Thank you, sir. Boys and girls, and future of the nation. As the Colonel Sinha sir said, I came here in the last December. Ayush and Badal knew about me. We were studied together at that time. First of all, I'll start from my journey. Today, whatever I am here, whatever I have achieved, the credit goes to the entire Gurudeva team. Gurudeva, I'll say, because I tried my luck directly without taking any coaching during my last 3 attempts. मैंने जैसे कि 3 ACC attempts दिए थे without taking any coaching. But I realized once I reported here कि what I have missed because I started my preparation in 2014, and since that time I have been trying for the different commissions, ACC and SEO and SL. But after reporting here, you can't believe, because the routine which is set up here is totally different, because you can change your psychology once you get the appropriate guidance from the mentors only. So whatever you are being taught here, listen every words which is you are being taught. जो आपको सिखाया गया है, हर एक चीज आप ध्यान देके सीखो. मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने यहाँ सीखा है, आई हैव डन नथिंग बियॉन्ड दैट. गिव योर टाइम, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, spend some money on taking coaching, on improving your communication even. जिस दिन मैं पहले दिन आया था, सिन्हा सर से मैं मिला था, तो ही रियलाइज यार यू हैव पोटेंशियल बट यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ. अगर किसी बंदे का इंग्लिश वीक है तो मतलब आपने आपको इतना कम मत समझो, ठीक है, ये इंप्रूव हो जाएगा. नथिंग. जैसे मैंने 6 मंथ कम्युनिकेशन क्लासेस लिए थे. आई हैव टेकन क्लासेस फ्रॉम वन ऑफ द मेंटर, सी इज फ्रॉम कोलकाता. तो जो ऑनलाइन क्लासेस थे, आई हैव टेकन फ्रॉम हर, एंड देन आई रियलाइज कि यार हाउ ब्यूटीफुल आई कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो. So that will help you to represent yourself there.
बट डोंट मिसअंडरस्टैंड, इंग्लिश विल सब कुछ कर देगी ऐसे नहीं है, डोंट मिसअंडरस्टैंड दैट आल्सो, जस्ट शार्पन योर नॉलेज एंड यू विल गेट मतलब दैट मच कॉन्फिडेंस टू रिप्रेजेंट ड्यूरिंग द बोर्ड, ठीक है। देन मैं जब यहाँ आया था तो अगर मुझे एक वंस यू शो द पिक्चर ऑफ टैट ना, अगर मुझे आधा घंटा भी बिता दोगे तो भी मुझे स्टोरी नहीं आती थी उसके ऊपर। देन वन बाय वन जैसे हम वी कीप प्रैक्टिसिंग, वी द वेरी गुड प्रोसेस फॉलोड हियर, जैसे कि देखते हैं, देन यू विल लिसन टू अदर्स आल्सो, दे विल आल्सो रीड देयर स्टोरी, देन वी पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप डिस्कशन, सो यू विल गेट टू नो कि ओके यू विल गेट द लॉट्स ऑफ आइडियाज हियर। सो प्रैक्टिस ऑल दी, वो आपके एक साइकोलॉजी ऐसे बनाओ कि मतलब व्हाट असेसर्स आर मतलब एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, आपसे क्या चाहते हैं, वहां तो गदर होना ही है, ऐसे कैंडिडेट आएंगे तो होंगे, लेकिन जैसे आप वो सीक्वेंस वाइज बताते हो तो दे विल सी द मतलब व्हाट इज द कॉन्फिडेंस, व्हाट इज द नॉलेज, आपका जो नॉलेज वहां रिप्रेजेंट होता है। तो वो जो ग्रुप प्लानिंग का एक्सरसाइज है, जैसे हमारे ग्रुप में बहुत सारा गदर हो गया था, जैसे मैं भी फॉलो किया था, मुझे जो मौका मिला वहां पे कि आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मतलब ग्रुप का प्लान एक्सप्लेन करने के लिए, तो जो मैंने यहाँ सीखा है, सर सिन्हा सर ने बहुत बार प्रैक्टिस कराया था, वो हमने नोट डाउन भी किया था, इवन मैं यहाँ से जाने के बाद में मैंने एक साल उसको रिपीट कर दिया, एंड आई गॉट अपॉर्चुनिटी, वो दिन आ ही गया, ठीक है। तो मैं खड़ा होकर वहाँ इतने अच्छे से मुझे 10 से 12 मिनट दे दिए जीटीओ ने कि वो एक्सप्लेन करने के लिए। वो इनिशियली क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होते हैं, आपका ग्रुप प्लानिंग होता है, तो वही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है, जीटीओ को पता चल जाता है यार इसमें पोटेंशियल है, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो लाइंस दी है, हर एक चीज आप बारीकाई से सोचो उस चीज को कि मतलब ये क्यों बताया जा रहा है आपको, हर एक चीज को मतलब अपने साइकोलॉजी में उतारो, आप अपने आप को ऑफिसर समझो, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आता है, क्या प्रैक्टिकली आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, माइंडसेट ही है, दिस इज एसएसबी इज टोटली साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी चेक करते हैं वहां पे, ग्राउंड में आके तो कोई चेक नहीं होता है, लेकिन टोटली दिस इज डिपेंड ऑन योर साइकोलॉजी। तो अपने आप को वैसे ढालो, अपने आप को उस माहौल में कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट यू आर गिविंग टू देम, दैट्स इट, ठीक है। जो आई विल टेल यू कि मतलब जो मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस था तो ये जीटीओ ही था, जिसमें हमने यहाँ से रगड़ के गए थे, वहां जाके कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आउट ऑफ द प्रैक्टिस, ये इतना छोटा सा ग्राउंड है, लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे वहां पे, जो जो ऑब्स्टिकल वहां बने हुए हैं ना, नॉट बियॉन्ड दैट, जो इतना मतलब सोच के समझ के कर्नल सिन्हा सर ने बनाया है उसको, वो यही है वहां पे, यही सेट आएगा। ये हो सकता है कि ग्राउंड थोड़ा अलग है, डिजाइन थोड़ा अलग होगा, लेकिन दो सेम ही है, जो आपको रूल्स बताए गए हैं ना उसको फॉलो करना है, बस आपका लॉजिक लगा हुआ है यार, बहुत ही कॉमन चीज है, बहुत कॉमन। और ऐसे नहीं कि मतलब आपने 15 दिन कर दिया और मैं सीधा एसएसबी में जाके कर दूं, वो नहीं, आपने सोचना है उस चीज के बारे में, जब व्हेनेवर यू गेट अ टाइम जस्ट सोचो कि मतलब जीटीओ में देखो कोई भी चीज आपके सामने कितनी सारे ऑब्स्टिकल रखे हैं, उसको ऑब्स्टिकल बना दो आपके बने, फैन है, टेबल है, चेयर है, बोर्ड्स है, कितना सारा चीज लगा, आप बस लॉजिक लगाओ, ब्रिज बनाओ उसके ऊपर, बस ये सोच में लाओ, तभी आपका आगे बढ़ जाएगा, आपको मजा आएगा जब आप आगे जाके प्रैक्टिस करेंगे, इवन टैट की, एसआरटी की, साइकोलॉजी की। So I want to ask you, since you were getting all the ideas, were you only giving all the ideas or what did you do there? हाँ, ड्यूरिंग जीटीओ एक्चुअली मैं सबसे फ्रंट में था, आई वाज देयर इन अ फ्रंट, बट आई रियलाइज दैट कि अदर गाइज आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटी, सो एंड आई एम गोइंग अहेड ना, सो आई स्टॉप देयर, even though कि I knew the ideas, but still I stopped there, and those guys standing over there back में तो जो है, I'll ask them, gentlemen, have you any idea how we can make the bridge over here? So anyone have if you have any idea, just let me know, I'll try your ideas. तो 2-3 बार बोल दिया, लेकिन nobody was मतलब किसी So को पता ही which नहीं। means what? Which means you are taking care of the group. Which means you are taking care of the group. And that is what we want to see, whether you in ground you can function in a group or not. वही चीज ग्रुप डिस्कशन में है, आपकी आवाज अच्छी है, आप चढ़ जाते हैं और जोर से बोलने लगते हैं, एक दफे किया, 2 दफे किया, पता चल जाता है यूर डोमिनेटर, आप सिर्फ अपने आइडिया चलाना चाहते हैं। और इसको जीवन में उतारिए, लोगों से पूछिए जो आपके ग्रुप में है, 1-2 दफे अपने आप को दिखला दीजिए, उसके बाद ये नहीं कि दिखला दीजिए सर सब कुछ मेरे को आता है बाकी सब मूर्ख है। नो, रेस्पेक्ट योर ग्रुप। वंस यू डू दैट, देन द ग्रुप विल ऑल्सो फील कि ये सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, हम लोग को भी चांस दे रहा था, तो फिर आपका ग्रुप का जेलिंग अच्छा हो जाएगा। फिर जब आप बोलेंगे तो आपको ग्रुप डिस्टर्ब नहीं करेगी कि यार इसके अगेंस्ट नहीं जाना, क्योंकि ये हमेशा हमारी मदद करता रहा है। और इसी तरीके से आप
जीवन में भी हर बात, हर चीज ये मत दिखलाइए कि बस आप ही आप हैं। पता नहीं कौन सा आदमी कब किस मोड़ पे एक अच्छा एडवाइस दे जाए, कौन सा लांस नायक दे जाए, कौन सा हवलदार दे जाए, कौन सा जेसो दे जाए। सुनो सबकी, करो अपनी, assimilate. You never know, Rahul may come out with a dynamic idea which never occurred to me. Are you getting my point? Please understand that life is not only every time बस सबके ऊपर तुम लोग सब गधे हो मैं बतलाऊंगा। नो, पता नहीं कौन, encourage your team to participate. Yeah. And one of the colleagues, our colleagues actually asked me, Netaji, you have performed a lot, just come back and allow us to perform. तो मैं उस टाइम वापस आ गया, स्टार्टिंग लाइन में आ गया और उनको जाने दिया मौका, जिसने बोला था उसको। मैं बोला चलो ओके, यू हैव नॉट गॉट अपॉर्चुनिटी, जस्ट ट्राई योर। तो वो चला गया, आगे जाके स्टक हो गया। सबको आइडिया पूछा, किसी को नहीं आया। देन उसने मुझे बोला कि देन नेताजी कम फॉरवर्ड। उसने फिर मुझे वापस आगे बुलाया वहाँ पे, उसके बाद ग्रुप आगे चला गया। तो ऐसे नहीं, आपको अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी वहाँ पे। लेकिन ये नहीं है कि आप फट्टा बल्ली लेके भाग रहे हो आगे जाके, किसी को मौका ही नहीं दे रहे हो। नो नो, आइडिया वहाँ इतना इक्वलेंट है कि आइडियाज इंपॉर्टेंट है, आप क्या आइडियाज दे रहे हो। फिर कोऑपरेशन, अपने ग्रुप को साथ में लेके चलना भी है और पीछे भी नहीं रह रहा है। वहाँ बीच में रहो, मिड में, और सबके आइडियाज ले लो और आगे चलो और लोगों को आइडियाज दे दो। मतलब आपने खुद किया एक बार, चलो दूसरे को दे दिया, दूसरे को नहीं आ रहा लेकिन दूसरे को आइडिया दे दो एटलीस्ट, तो उनको काम में लगा। वहां पे कोई आदमी अगर कोई आइडिया दे रहा है, उसका आइडिया अच्छा हो रहा है, तो उसकी तारीफ करना अपने आप को अपना चांस खत्म करना है या अपना चांस सिलेक्शन को और बढ़ाना है? बढ़ाना है, बिल्कुल बढ़ाना है। किसी ने अच्छा दिया, ओके, वेरी गुड आइडिया, दिस इज वर्केबल आइडिया जेंटलमैन, वेरी गुड आइडिया, आप यू कैन से देयर। और क्या होगा इससे? और क्या होगा इससे? उससे वो आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो भी आपको सपोर्ट करेगा नेक्स्ट टाइम। इसने अगर आपने अप्रेस कर दिया उसको कि यार कितना अच्छा आइडिया हुआ है, वेरी गुड आइडिया है ना, तो वो जेंटलमैन आप कुछ आइडिया दे रहे हो तो आपको और सपोर्ट करेगा, आपके पीछे चलेगा वो। इसलिए ये है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक टीम बन जाती है वहां पे। एक दूसरे से मतलब सपोर्ट करने से क्या है कि आपके चांसेस है वहां पे हर एक चीज। जीटीओ तो एंटायरली टीम वर्क है, वहां पे वही देखा जाता है। इवन इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हो या ग्रुप रेस को, वहां पे क्या है कि आप कितना हेल्पफुल हो, वही तो नेचर दिखाना है, कितना कोऑपरेट कर रहे हो, ग्रुप के साथ कितना चल रहे हो। आप फिजिकली कितना फिट हो, दैट इज डजंट मैटर। अगर फिजिकल फिट हो तो वेल एंड गुड, अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट ग्रुप के साथ चलो, ग्रुप को कोऑपरेट करो। जब हम खड़े थे वहां, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल चल रहा था, वहां पे जो वॉल थी वो बहुत हाइट थी और कुछ बंदे छोटे छोटे थे वहां पे, तो मैं नीचे खड़ा था वहां पे, सबसे लास्ट, आई वाज द लास्ट कैंडिडेट, मैं नीचे था और उन लोगों को ऐसे हमने वो ब्रिज बनाया दो बंदों ने, और ऊपर ऐसे उठा के फेंक रहे थे, तब वो पहुंच रहा था उस वॉल के ऊपर, और लास्ट तब तक रहा, मेरा हाथ भी छिल गया था उसमें। तो वो जीटीओ सब कुछ देख रहा है आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो जहाँ मतलब फिजिकल फोर्स की जरूरत है वहां सपोर्ट करो, जहाँ कोऑपरेशन चाहिए कोऑपरेशन करो, अप्रेज करो एक दूसरे को, मतलब आप मोटिवेट करो कि हाँ यू कैन डू दिस ना। तो आप मतलब कुछ चीजें ऐसे है कि हर एक चीज वहां ऑब्जर्व हो रहा है, हर एक चीज का एक पर्पस है, आपको ऐसे नहीं वहां कोई चीज कराई जा रही है। तो थ्रू आउट द टेस्ट आप मतलब हो रहे हो, तो आपको मन से वाचा कर्म, आप जो क्या बोल रहे हो, क्या मतलब सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, तीनों चीज वहां एनालिसिस हो रहा है। तो ये चीज नहीं सोचना है, किसी को डोमिनेट नहीं करना है वहां, डोमिनेट करने से आप हाईलाइट हो जाओगे वहां पे। मान लीजिए आप स्नेक रेस कर रहे हैं, कोई नहीं कर पा रहा है, तो उसको चिल्लाने मत लगिए, क्योंकि पता नहीं ये आदमी दूसरी जगह कहीं पर और आपको अच्छा हेल्प कर जाए। अभी यहां पे उसके प्रॉब्लम है, उसको एनकरेज कीजिए, उसके बदले में जाके कर दीजिए, लेकिन आपके चेहरे पर भाव भंगिमा नहीं होनी चाहिए। और ये सारी बातें आपको अपने पर्सनालिटी में लाना चाहिए। हाउ वाज योर इंटरव्यू वीएवी? ये जो 3 इंटरव्यू आपको यहां करवाए थे, इंटरव्यू वाज वेरी, आई एंजॉयड माय इंटरव्यू एक्चुअली। आई मतलब डिडंट फेल कि मतलब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ ऐसे लग ही नहीं रहा था, बिकॉज इतने सारी प्रैक्टिस यहाँ पे कराई थी। एंड वट एवर आपने जो बुकलेट आई थिंक बनाया होगा, उसमें जो FMR PSA IFTA वाला जो हमारा कंसेप्ट है, दिस इज द बेस्ट कंसेप्ट विच इज वी आर बीइंग फॉलोड हियर। बहुत ही बेस्ट है, वहीं से स्टार्ट होता है हर एक इंटरव्यू, एवरी इंटरव्यू स्टार्ट फ्रॉम दैट ओनली। तो माई इंटरव्यू स्टार्ट ओके, जैसे मैंने विश किया, आई वेंट इनसाइड एंड विश द प्रेसिडेंट, ही वाज प्रेसिडेंट एंड आई वाज द लास्ट कैंडिडेट हु गॉट इंटरव्यू फ्रॉम हिम। तो जैसे मैं चला गया, ओके जेंटलमैन, उसने ही पूछा, ही आस्क्ड मी, ओके जेंटलमैन, आई कंफ्यूज, टोटली कंफ्यूज्ड, व्हाट इज योर नेम, यू हैव रिटन हियर हवलदार PA माली नेताजी अंकुश, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। देन आई टोल्ड हिम, जो हमने पहले प्रैक्टिस किया था वही चीज तो वहां पूछा है एक्चुअली, मैं बस याद करके गया था, दैट्स इट एक्चुअली।
So I told him, sir, this is Mali is my surname. Generally, this is happen in Maharashtra only, sir. Netaji is my name. Ankush is my father's name. Then interview start itself only. Okay, why your parents gave you a name as a Netaji and what you have done till the date like Netaji. ऐसे start हो गया था तो वहीं से मतलब वो आपका psychology बनती है individual की ना. So the same thing we teach you. Absolutely, absolutely. Whatever the mentor. या थोड़ा बहुत तो आपको चेंज करना पड़ेगा, हल्का सा. वही बात तो हम आपसे करते हैं कि आपका नाम क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है. किया है ना, सबने किया है ना. बट उसमें आप उसके साथ आप लड़खड़ाने लगिए, अंग्रेजी में मार खाइएगा. तो उसके साथ जिनकी अंग्रेजी गड़बड़ है खूब अच्छी तरह कीजिए. फिर कभी राहुल से प्रैक्टिस करवा लीजिए, कभी कपिल से करवा लीजिए, कभी समीर का करवा लीजिए. उनको बोलिए कि भाई जितना क्वेश्चन पूछना होगा पूछना, तो उन्हीं क्वेश्चंस में से ये सारे क्वेश्चन भी आ जाएंगे. सो कोऑपरेट विथ ईच अदर हियर व्हाइल यू आर एट नाइट. एनी अदर क्वेश्चन व्हिच you were asked which you did not know? Yeah, absolutely, sir. I'm also human being. I'm not a omnipotent या omniscient. तो मैं भी हर एक चीज नहीं जानता हूँ. In case if you don't know, मतलब मुझे पूछा था, I forgot what is the name of your DGST? Who is our arms head होता है जो DGST होता है. तो I told him, sir. Otherwise he knew the name of everybody. The chief army staff, vice chief, आर्मी कमांडर, कोर कमांडर, डेव कमांडर, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसके साथ काम किया है. तो जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना मंजिएगा और अपने से क्वेश्चन सोचिए. आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछते हैं, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस में पूछेगा, हो सकता है एक आध एग्जाम्पल. और किसी से पूछिए, अपनी माता जी पिताजी से पूछिए कि माँ ऐसा क्वेश्चन, ये आंसर दे रहा हूं, तुम रहती तो हमसे और इसमें क्या पूछती. आपकी माँ भी जो स्कूल नहीं गई है वो भी फर्स्ट क्लास क्वेश्चन पूछेगी. लर्न टू यूटिलाइज द रिसोर्सेस. तो अभी इंटरव्यू का मोरल हमने बात कर लिया, जीटीओ का हमने बात कर लिया. साइकोलॉजी में आपने कितने स्टोरीज लिखे वो तो आपने थोड़ा बतलाया, कितने एसआरटी लिखे और कितने डब्ल्यूएटी लिखे, और जो लिखे उसके लायक आप कैसे बने. Talking about psychology, actually starting from TAT में 11 स्टोरी थे एंड 1 ब्लैंक स्टोरी थी जो कि ऑलरेडी हमने बनाया था. द स्टोरी जो आए थे कंप्लीटली स्टोरी जो हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंज हो सकता है, अदरवाइज सेम टू सेम ही आते हैं. कहीं 2 लड़के हैं तो कहीं एक लड़का लड़की खड़ा है, तो आप जस्ट इमेजिन योरसेल्फ, एक लड़का 2 लड़के खड़े हैं तो क्या स्टोरी बन सकती है, एक लड़का या लड़की खड़े हैं तो क्या स्टोरी बन सकती है. थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज करना है उसमें, अदरवाइज सेम ही है, मतलब आपका थीम सेम ही रहेगा, थीम विल बी सेम. वो स्टोरी आपने थोड़ा बहुत चेंज करना है. यहाँ तो मैं जहाँ से सर जैसे गया हूँ, मेरा एक बुकलेट इतना सारा भरा हुआ है सर, अराउंड 400 स्टोरी मैंने लिखी है, अराउंड 400. bloody big bloody hand. You don't, I'm not asking any one of you to write 400 stories. At least 30 to 40 stories. If you are not there at the back of your nail, back of your palm, और स्टोरीज की वही लाइंस आते रहती हैं, अपने आप स्टोरीज बोलेगा ये लाइन लिख, अब इसके बाद ये लाइन लिख, अभी 13 लाइन कंप्लीट होने को आ गया, 14 लाइन. खूब प्रैक्टिस किया लिखने का भी, आपने समय पर लिख दिया, जबरदस्ती सर उठा करके अपना बॉडी वॉडी आंटने मत लगिए, उसको और भरिए और जम के खत्म कीजिए. इनफैक्ट अभी बाहर ये बात कर रहे थे कि इनसे पूछा तुम जवान है, तुमने 60 एसआरटी और 60 डब्ल्यूएटी कैसे किया. तो सर मैंने प्रैक्टिस किया है. आप वहां जाकर के यही बात, सर मैंने 300 स्टोरी लिखे, और जो सच है उसको कोई छिपा नहीं सकता. ये नहीं कि आप लोग 10 स्टोरी तैयार करके जाइए, आप लोग भी बोलिए सर एक बात बताना चाहता हूं, मैंने 300 स्टोरी लिखा, पकड़ लेगा. जो करो वो बोलो. साइकोलॉजी इज द सिंपलेस्ट एंड साइकोलॉजी इज द टफेस्ट. आपने ग्रेजुएशन में नंबर लिया हुआ 94 लिया हुआ है इंग्लिश में, लेकिन कई एक वर्ड आते हैं आपको एकदम आप जोंक्ट हो जाते हैं, क्या बनाए. उस जमाने में तो इनको दिया हुआ था कि उसी वर्ड से शुरू करना है और खत्म करना है. आजकल तो थोड़ा सिंपल हो गया, आजकल आपको सिंपल कर दिया सर ने. इनके समय साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, मैं ही था जो
साइकोलॉजिस्ट भी था, मैं ही था, मैंने जो सेट किया हुआ था, स्टार्ट विथ सेम वर्ड SW, और उसको उन लोगों ने इतना किया है। तो एवरी डे यू मस्ट प्रैक्टिस साइकोलॉजी। 5 स्टोरी रोज लिखिए, 30 वर्ड रोज लिखिए, 30 SRT रोज लिखिए। आप जानते हैं तो अभी कहते हैं अरे मैं जानता हूं लिख दूंगा। हाँ आप जानते हैं, आप लिख भी दीजिएगा, लेकिन स्पीड कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा सर? प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करिए वहाँ। इवन मतलब मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ अपने आप को, लेकिन जब हम टैट लिखे थे सर, मैं टैट लिख के मेरा पेपर वर्क खत्म हो जाता था और टाइम भी बच जाता था, इतने फास्ट में लिखता था वहाँ पे। इतना मतलब प्रैक्टिस, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जस्ट 30 सेकंड मिलते, यू गेट 30 सेकंड टू ऑब्जर्व द पिक्चर। मेरे को एक पिक्चर, जस्ट मैं पिक्चर देख लिया 5 सेकंड, ओके आई गॉट द आइडिया। तो वो जो 30 सेकंड था वो भी मैं यूज करता था लिखने में। मतलब आप ऐसे नहीं करना है एक्चुअली, यू शुड आपको नहीं करना है, आपको एक एक कॉर्नर देखना है। आपने नहीं करना एक्चुअली, मैंने कर दिया, दैट शुड मतलब दैट शुडंट देयर। तो वो जो 30 सेकंड था उसमें भी मैंने 20 सेकंड यूटिलाइज कर दिया लिखने में, क्योंकि लाइट बंद हो जाती है तो अंधेरे में दिखता नहीं वहां पे एक्चुअली। वो पिक्चर देखते आपको आइडिया आना चाहिए। इवन सर जब मैं अभी इंटरव्यू के लिए जाना था, उससे एक दिन पहले मैंने 100 स्टोरी की थीम लिखी थी, 100 स्टोरी। 1 घंटा, एक मोर देन मतलब 1.5 आवर्स लग गया होगा उसमें। पिक्चर देखना है, अभी तो आप बोलोगे कि एक पिक्चर शो मी जस्ट 1 पिक्चर, आई विल टेल यू दी 10 थीम्स, उसके ऊपर 10 थीम्स आ जाएंगे। इतनी प्रैक्टिस करो सो दैट आपको वहां जाके एंजॉय करना है SSB को, वहां जाके सोचते नहीं रहना कि भयंकर मेरा ये हो गया वो हो गया। एंड दैट वाज ऑल इनकम्बेंट ऑन आपने कितना मेहनत किया है। बस, that's सो it. लेडीज एंड जेंटलमैन, द एम ऑफ कॉलिंग हवलदार माली was, and it's very kind of him that he came. He has told you, सब दुखों की एक दवा है, एंड दैट इज हाउ मच यू बर्न योरसेल्फ। और उसमें आपको दुख नहीं होना चाहिए, उसमें आपको ये किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं आप। एंड नॉलेज इज नेवर वेस्टेड। अगर आप इतनी स्टोरी इतनी बार लिखेंगे तो पहली चीज तो एक ही बात हो जाएगी कि आपकी राइटिंग स्पीड इतनी तगड़ी हो जाएगी। दूसरा, रोज 5 स्टोरी लिख रहे हैं, वही स्टोरी का इंट्रोडक्शन होता है और वही खत्म होता है। और अपने आप आपका सर बोलेगा अगला लाइन ये लिख, अगला लाइन ये लिख, अगला लाइन ये लिख। आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होगी। आप जब सर उठाएंगे देखेंगे सब लिख रहे हैं, मेरा तो खत्म हो गया, मैंने भर भी दिया। दूसरी स्टोरी हुई, फिर आपने सर उठाया, आपने यही देखा, तीसरा चौथा पांचवा स्टोरी में आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं इनसे तो एकदम लाख दर्जन अच्छा हूं। आप अपने आप में मोटिवेशन आएगी कि यार आई एम फुली प्रिपेयर्ड। इट इज एविडेंट। सब ससुरे अभी भी लगे हुए हैं, मैं हर बार सर उठा ले रहा हूं और मैं जानता हूं मैं क्या लिख रहा हूं, क्योंकि घर पर मैंने इतने प्रैक्टिस किए हैं। यू हैव अ रेफरेंस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, it was eye-opening for me also that a man can practice so much as 400 stories. My God, unimaginable. But then there are people like Havaldar Netaji who have come to win the, and after 4 failures he did not back out. यहां पर 16 फेलियर के बाद लोग आए हैं और सेलेक्ट हुए हैं। एंड टुडे ही वाज टेलिंग मी कि 2010 साल से मैं मेहनत कर रहा हूं। अगर मैं शुरू में आ गया होता तो अभी तक मैं कैप्टन, सीनियर कैप्टन बन गया होता या मेजर बन गया होता। 6 साल में तो आदमी मेजर बन जाता है, 4 साल की ट्रेनिंग ACC की। बट होइए वही जो राम रुचि रखा, वही तभी होगा। आपका काम है सिर्फ कर्तव्य, कर्मण्यवादी का रास्ते। आपका अधिकार कर्म पे, अपने कर्म पर लगे रहो, हारो मत। पृथ्वीराज चौहान वॉज टेकन इन विच अटेम्प्ट? तो उसको उठाने वाला तो 16 दफे में तो कहता कि भाई हम तो हार गए। नो, ही केम विथ न्यू विगर एंड अल्टीमेटली ही टुक पृथ्वीराज चौहान। तो कोई उससे ये पूछने वाला था कि तूने पृथ्वीराज 16 दफे फेल क्यों किया? दुनिया ये नहीं देखती बॉस, दुनिया ये देखती है, और दुनिया तो आपको चढ़ाएगी। When 97% of the people are failures, it's only 3% who are the bogies, who are the engines. You have to not bother about the comments of others. दुनिया कमेंट करेगी तुम मोटे हो, कर लूंगा मैं पतला अपने आप, साला करके दिखलाऊंगा मैं। वो जिद, वो जुनून
आप में जीतने की होनी चाहिए. Last, I would like to know about your conference. During my conference, actually, just 2-3 questions they ask. If you are a clear reject or clear recommended candidate, generally they don't ask any questions. How was your stay? ऐसी बात लेके मत जाइएगा. इनके साथ जो हुआ वो ठीक है. That is what अब कुछ भी हो सकता है. आप सिलेक्टेड भी है तो मजे लेने के लिए भी हम लोग पूछते हैं. it may happen with you also. Just prepare yourself accordingly. Whatever happened with me, that can I tell you. Just ask me how was your stay, how was food, any suggestion, and how do you analyze your performance. ये क्वेश्चन पूछे थे मुझे. Then how you कैसे करते हो. तो then I told them कि मैं मेरा GT was fantastic, psych and the interview was also good, sir. So that same question he asked me, how you were able to complete all the psych test within a time, मतलब VAT and SRT 60 out of 60. Then the same answer I gave them, कि sir I made a lot of practice on that, because of that only. How do you confident about your, if you are, whether you are writing right or wrong, sir, whatever I have written, that is my psychology, and that is what I have written there. That was my answer. जो मैंने लिखा है वही मेरा साइकोलॉजी है. That's why and practice किया है. ठीक है ना. That's it. आपको जो जज करना कर लो. लेकिन ये अकल की बात है. मेहनत करना मेरे हाथ में था. जानता जितना हूं मेरे हाथ में था. उससे मैंने 60 लिख दिया. आप तो नंबर के बारे में पूछो. नंबर मैंने प्रैक्टिस किया हुआ था. तो ऐसे कैसे पता कि तुम ठीक लिख रहे हो कि नहीं. सर, आई हैव पुट माई साइकोलॉजी. दैट इज अप टू यू टू डिसाइड वेदर इट वाज करेक्ट और नॉट करेक्ट. खत्म हो गई बात. मेरा कर्म कहां तक है, मेरा अधिकार कहां तक है, मेहनत पर ही है ना. मैंने मेहनत किया है तो आपको 60 12 कर दिया. अब उसकी क्वालिटी क्या है आप चेक कीजिए ना. आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1.5 लाख रुपया दे रहा है. ये इन्होंने कह दिया सर ये मेरी साइकोलॉजी है, मैंने खोल के आपके सामने रख दिया है. अब तो यू टू डिसाइड. हमसे तो यही पूछ सकता है कि 60 वर्ड कैसे लिखा, और जो मैंने किया है 60 वर्ड के लिए वो हम बोलूंगा. कि जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, कोई नया वर्ड आता था, मैं उसको अलग कॉपी में बनाया था और उसको डिक्शनरी में देखता था और उसके बाद गूगल से पूछता था इसमें 3 सेंटेंस बतलाओ. सर मैंने ऐसे सीखा है. नाउ दिस इज सच अ क्लियर कट. ये क्या भाई, इससे 60 किया भी, बोल भी रहा है और अंग्रेजी भी बोल रहा है. 2-4 गलतियां सीख जाएगा साला, उसमें क्या है. अभी भी साहब ने थोड़ी बहुत गलत अंग्रेजी यूज की. सो ब्लडी व्हाट. इतनी अंग्रेजी तो चलेगी भाई. लड़ाई अंग्रेजी बोल के चाइनीज को नहीं मारेंगे, लेकिन सीखने की ताकत थी कि 98% तक सीख गया है. बाकी 2% सर्कल साम से खिला देगा. लड़ाई के मैदान में से पीछे नहीं जाने वाला. दिखला चुका है कि कहां से कहां आया है. सो लेडीज जेंटलमैन, ऑन योर बिहाफ आई वांट टू थैंक हवलदार Mali Netaji to come and share and his every possible thing that he could, that you will be also attempting the same way, and everything starts from today. So work till 2 o'clock, 3 o'clock in the morning. You are not gonna go die. When you get selected, then you'll stand like him. And खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है. The Netaji of those days and the Netaji of these days after selection, there's a world of difference. वो कॉन्फिडेंस अंदर से झलकता है, डर खत्म हो जाती है. तो आप और हैंडसम होने के लिए और खूबसूरत होने के लिए तैयार बैठे हैं. आज को जला दो, कल बहुत खूबसूरती आपके सामने आएगा. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू हिम पेशेंटली.